So perfect competition firm in the long run is an optimum firm as well as equilibrium firm earning zero economic profit. Monopolist firm in the long run is not an optimum firm making abnormal profits at a equilibrium level. Not an optimum firm means, right, at a equilibrium level, MR is equal to MC. They are producing at a, right, downward sloping portion of LAC, and at that point the plant they have installed is also downward, right, right it is tangent to the downward sloping portion of LAC, and therefore I will say, right, the plant is being underutilized. So being underutilized, being suboptimum, they are making supernormal profit in the long run. There is no incentive to reach to the optimum level. If you try to reach to the optimum level, you will decrease your profit or monopolist will suffer the losses. The monopolist firm, right, in the long run earns zero economic profit, again not at optimum level, they are at a suboptimum level. If they try to achieve suboptimum level, they will suffer the losses, and therefore they will not try to be optimum firm. So only one firm which, right, only one firm which makes, right, equilibrium output at optimum level, equilibrium output at optimum level, or is equilibrium output and optimum output is same, that is perfect competition firm, that too in the long run. And other firms make supernormal profit or normal profit, that is equilibrium profit as the case may be, but by being suboptimum. This is a, right, excess capacity is a feature of monopolistic competition. लिख लेना, excess capacity is, excess capacity is a feature of, right, per monopolistic competition. What is excess capacity? The output at equilibrium and output at lowest point of your LSC, right? Lowest cost wala output and highest profit wala output. Lowest cost wala output is the optimum output, and highest profit wala output is your equilibrium output. And you know, equilibrium output is less than optimum output because it is suboptimum firm. That difference is called as that excess capacity, and excess capacity is a feature of which market? Monopolistic competition. So let's see these differences, very important. देखो आपने 12th में भी ये किए थे, अब यहाँ पे कितने डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है. फर्स्ट डिफरेंस, large number of buyers and sellers. Yes, single seller, right? No difference between seller and the firm and the industry. Firm and the industry, we have seen, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री देखते हो, वहां पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे उनकी इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एवरेज रेवेन्यू कर्व दैट इज, एंड इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज ए अपवर्ड स्लोपिंग. एंड यहां से प्राइस लेता है कौन? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म. इन केस ऑफ मोनोपोली, industry demand curve is a downward sloping, industry supply curve is upward sloping, and the firm itself, monopoly firm itself is the industry, and therefore its average revenue curve is a downward sloping because firm itself is the industry. कहाँ पे लिख लेना है पॉइंट, मैं कुछ ऐसे पॉइंट दे रहा हूं जो आपको एमसीक्यू के लिए यूजफुल रहेंगे. फर्स्ट पॉइंट वो मैंने, एक्सेस कैपेसिटी इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये किसके लिए लिखना है हमें? ऑब्जेक्टिव्स में के लिए. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज monopoly faces downward revenue curve or demand curve, downward average revenue curve or demand curve because it itself is an industry. It itself is an industry. Next, then monopolistic competition में क्या है? Large number of buyers and large number of firms in the industry. Yes, ये this is we are quite aware about. Perfect competition में homogeneous product which are perfect substitute. Cross elasticity is zero. Sorry, cross elasticity is infinite.
क्रॉस इलास्टिसिटी इज इन्फिनाइट. ठीक है. Homogeneous means they are same in all respect. Color, taste, right? Size, packaging, everything is same, homogeneous, identical. ठीक है. No close substitute. Generally यहाँ पे cross elasticity is almost equal to 0. Tends to. I don't know how you write tends to maths में. कुछ तो है उसका ऐसा tends to 0. It is very less or almost tends to 0. Name. Again, differentiated products which are close substitutes, right? But not perfect substitute. Differentiated on some specific ground. ठीक है. Products which are close substitute but not perfect substitute. Same. यहाँ पे भी, right? Elasticity tends to infinite. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि infinite होती है. It is very high. Cross elasticity is very high. जितनी ज्यादा क्रॉस इलास्टिसिटी उतने ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट, एंड जितनी कम क्रॉस इलास्टिसिटी उतने, राइट, दे आर नॉट क्लोज. आगे insignificant market share. Yes, they cannot control market at all. They are just a small player, right? They cannot control market supply. They cannot control market demand. They are price takers. Command over the whole market because यहाँ पे firm itself is a industry. Each firm is a small relative to the market. Then next, competition among firms is perfect competition. ठीक है. Perfect competition gives no power. Monopoly power नहीं होती. Means you will be charging average revenue is equal to marginal cost. Absence of competition, you can charge price more than marginal cost. Imperfect competition, competition hai but not that perfect. A firm which has a good brand, they can charge their own price, but they should also understand if they increase the price, some of the customers, not all, but some of the customers will, right, start buying the substitute. Not all, some of them. So यहाँ पे average revenue is perfectly equal to marginal cost. Next, complete absence of monopoly. Yes, देखो, absence of monopoly is a perfect competition. Absence of competition itself is your monopoly. Complete absence of monopoly, high degree of monopoly power prevails, average revenue is greater than marginal cost, right? Some degree of monopoly power due to product differentiation. Yes, it is a blend. It is blend. क्या blend है कि because of brand, right, you become a monopoly or you get some power of the monopoly, you can increase your price, and उसके साथ some of the customers will leave you is a characteristics of the perfect competition. If you increase the price, there are substitutes, right? They will, buyers will shift to the substitute. So some feature of the monopoly, some feature of the perfect competition. Then free entry and exit. Yes, no such entry, strong barriers to the entry, free entry and exit. जहां पे free entry and exit है ना, वहां पे click होना चाहिए कि long run में industry will adjust. Long run में there is a scope that industry will adjust. Price taker, yes. Price taker means no monopoly power, and their price will be equal to their marginal cost. They are price takers, and their price is generally equal to marginal cost. They are price makers. They have control. They will keep the price generally more than marginal cost. Some control of the power. Yes, I do agree. Like there are some brands like Apple,
they charge higher price. They can control their prices. There are brands, right, which charges higher price because of the loyalty of the customers. So they have some control over the price. Maybe they will be charging price more than the marginal cost, but not like monopoly. सबसे ज्यादा प्राइस किसमें रहती है? सबसे हाईएस्ट प्राइस मोनोपोली में. उससे कम प्राइस किसमें रहती है? मोनोपोलिस्टिक में. एंड सबसे कम प्राइस किसमें रहेगी? परफेक्ट कंपटीशन में. सबसे ज्यादा आउटपुट कहां पे रहेगा? परफेक्ट कंपटीशन में. उससे ज्यादा आउटपुट कहां पे रहेगा? उससे कम आउटपुट कहां पे रहेगा? मोनोपोलिस्टिक में. एंड सबसे कम आउटपुट कहां पे रहेगा? मोनोपोली में. मतलब मोनोपोली में प्राइस सबसे ज्यादा है बट आउटपुट सबसे कम है. परफेक्ट कंपटीशन में आउटपुट सबसे ज्यादा है बट प्राइस कम है. एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बोथ आर मॉडरेट. आगे नेक्स्ट. यस देखो ये प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, राइट. प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट. ये देखो ये फीचर्स कभी आपने 12th में नहीं सीखे, बट दीज आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाउ टू डिसाइड यू, राइट, यू हैव पावर और नॉट. आर यू चार्जिंग मोर देन योर कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो उसके लिए जो खर्चा है उससे ज्यादा अगर आप रिकवर कर रहे हो कस्टमर से, मींस यू हैव पावर. ठीक है. देन प्राइस लेस देन अदर मार्केट फर्म्स, यस. हाई इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट, यस. एंड मॉडरेट रहेगी. हाई कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन बट लो कंपेयर टू मोनोपोली. डिमांड कर्व इज infinitely elastic. It is horizontal line parallel to x-axis and answer is infinite. Downward sloping and highly inelastic. थोड़ी steeper होगी, right, generally less than 1. Demand curve downward sloping and more elastic, it is flatter. लिख लेना, this is horizontal parallel to x-axis. This is steeper and this is flatter. This is flatter. MR and AR represented by the same curve. Yes. When AR itself is a constant, MR will be constant and equal to AR. So there are no two separate curves, right? They are same. MR starts at the same point as AR. दोनों start equal point पे करेंगे. Means for first unit, AR is equal to MR. However, as you sell more units, right, AR will decrease because if you have to sell more, you have to decrease the price not only of the next unit but also of the previous unit. And therefore, you will sacrifice more and your marginal revenue will be, right, less than your average revenue. Marginal revenue, right, MR starts at the same point as AR and is twice steep when compared to average revenue. Slope of marginal revenue is 2 times the slope of average revenue. So they are the two separate curves. MR curve is below the average revenue curve. MR starts at the same point as AR and is twice the steep when compared to AR. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे चाहे तो छोटे इसमें ऐसे डायग्राम निकाल लो. यहाँ पे लिखो स्पेस एरर निकालो ना. इन दोनों के लिए. ठीक है, आगे AR and MR. Next, total revenue, TR. Total revenue is a straight line positively sloping through the origin. ये सब मैंने सिखाया आप लोगों को. So this will be the total revenue curve. TR. और इनके केस में बेल शेप्ड रहेगी. इन्वर्टेड यू शेप्ड. इन्वर्टेड यू शेप्ड, उल्टा यू. उल्टा यू. यू ऐसे होता है, उसका उल्टा, या बेल शेप्ड.
एंड यहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1. इफ यू रिमेंबर ये फॉर्मूला यूज किया था हमने, राइट? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय ई माइनस 1 अपॉन ई. ये फॉर्मूला यूज करके हमने ढूंढा था, इफ यू रिमेंबर. इफ इलास्टिसिटी इज 1, आंसर इज 0, राइट? मार्जिनल रेवेन्यू 0, एंड जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है वहां पे टोटल रेवेन्यू क्या रहता है? मैक्सिमम. सो यहाँ पे लिखना ई इज इक्वल टू 1. यहाँ पे ई इज इक्वल टू लेस देन 1 और यहाँ पे ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1. टोटल रेवेन्यू इनवर्टेड शेप सेम, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सेम है. आगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, no price discrimination, same price for all units, yes. Monopoly firm, yes, can practice the price discrimination by selling a product at three different, right, at selling the product at a different prices. 3 degrees of the price discrimination. Degree 1, every customer is a different, doctors, lawyers, consultant, right, auction, bid, negotiations, इन सब में ये होता है where the entire consumer surplus is taken away. Second degree of consumer surplus, for different buyer different price is charged for different quantities. जो बल्क में परचेस करेगा उसको पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगी, जो राइट लेस यूनिट्स परचेस करेगा उसके लिए पर यूनिट प्राइस ज्यादा रहेगी. सेम कस्टमर के लिए फॉर द सक्सेसिव यूनिट्स डिफरेंट प्राइसेस, राइट? दैट इज द सेकंड टाइप इन द सेकंड डिग्री ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. एंड थर्ड डिग्री में we classify the market, right? हम उसको segmentation करते हैं, उसको divide करते हैं, right? Right, on some characteristics. In the second and third market, we take away part of the consumer surplus. Then, depends on the extent as monopoly power of the firm has. If they have good monopoly power or brand recognition, in that case they can discriminate the buyers. कोई ऐसे नहीं है, because monopolistic में भी discrimination हो सकता है. Discrimination के मैंने benefits भी बोले, right? By doing discrimination, like मैंने आपको बोला है कि telecom companies do discriminate, right? मैंने आपको theaters बोले, मैंने आपको schools बोले, right? मैंने आपको image का example दिया. They are doing discrimination but for some good purpose. इससे कस्टमर का भी फायदा होता है, उनका भी फायदा. They are not monopoly firms, they are monopolistic firms, और मे भी perfect competition नहीं बोल सकता, but monopolistic firms है या oligopoly firms है. They are exercising, right? They are exercising price discrimination. They can shift their load during the peak season or peak period to off peak period. वहां पे डिस्काउंट देके सम ऑफ द कस्टमर्स दे कैन डाइवर्ट. कस्टमर्स भी रहेंगे, लोड भी कम रहेगा, एंड जहां पे यूज नहीं हो रहा है, जो टाइम फ्री है, जहां पे कैपेसिटी यूज नहीं हो रही जिस पीरियड में, वहां पे वो यूज करना स्टार्ट कर देंगे. कैपेसिटी तो बिल्ड करके रखी है, उस टाइम आइडल रहते रिसोर्सेस, सो बेटर यूज देम. ठीक है. देन सो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक does the price discrimination, and whenever they are doing price discrimination they should understand that they should, right, 3 चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, the total output should be produced is equal to marginal cost should be equal to aggregate marginal revenue. क्या बोला मैंने? ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं. Marginal cost should be equal to right marginal cost should be equal to aggregate marginal revenue of the firm for the entire market, right? Then distribute this output, OM output, between market A and market B in a such a way that
those markets will be also in equilibrium. means right, वहां पे every market ऐसे वो OM आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करो so that marginal revenue in the sub markets will be equal to the marginal cost. Marginal revenue in the sub market should be equal to the marginal cost of the entire market. मतलब they itself is a market. So firm A achieves equilibrium at this output, बराबर. Firm B achieves output at this level. This is OM1. This is OM2. OM1 plus OM2 is equal to OM. OM1 plus OM2 is equal to OM. These are in lakhs and these are in thousands, suppose. ठीक है? And you can see the price charged here is OP1 और यहाँ पे price charge is OP2. OP1 is more than OP2. ठीक है? This is the price discrimination. What is the condition? Monopolistic competition की condition क्या है? Marginal revenue of sub-market A should be marginal revenue of sub-market B should be equal to marginal cost. They will be in equilibrium. As a simple monopoly, it will be in equilibrium, and as a differentiating monopoly, each market will be in equilibrium. आगे next, and by doing that they can earn the profit. उसमें भी याद रखना है कोई चीज है. When monopolist is charging different prices, sorry, when monopolist is charging same prices, right, to the customers having different elasticities, he is doing wrong. Why? If for the same price, if price is the same, higher the elasticity means higher the marginal revenue, lower the elasticity means lower the marginal revenue. So he should transfer the output from the lower marginal revenue market to the higher marginal revenue market. That will contribute more to his profit, to sales. Cost is the same. Sales में ज़्यादा contribute हो गया, cost same है, तो profit में भी ज़्यादा contribute होगा. So he should transfer output from less marginal revenue market to higher marginal revenue market. That is lower elasticity market to higher elasticity market. मतलब inelastic market से elastic market में. And because of that, elastic market में supply decrease होगा, price will increase. Elastic market में supply increase होगा, price will decrease. Discrimination हो रहा है, and right, ये जो output transfer हो रहा है, this transfer should take place until the marginal revenues in the both market becomes equal. Once you achieve same marginal revenue in the both the markets, there is no point in the transfer of output, because additional plate कहाँ पे भी sell करो, right? It will add same to your revenue, ultimately same to your profit. Are you getting my point? Revenue में 10 रुपए, suppose profit में 4 रुपए, दोनों जगह पे same ही add होगा, whether you sell in the market A or sell in the market B. आगे, ठीक है? Then आगे, no supernormal profits in the long run. Yes, only zero economic profit. Then yes, supernormal profits both in the short run as well as long run. Generally they earn supernormal profit in the short run as well as long run, but not necessarily कि short run में खाली supernormal profit ही कमाए. They can be earning zero profits or even losses. This is misconception कि monopoly can never earn the loss, suffer the losses. No, they can suffer the losses in the short run. आगे, हाँ, no supernormal profits in the long run, zero profits. आगे, no selling cost. No selling cost. Yes, they don't require selling cost because everyone is selling, right, the same product. कहाँ पे भी जाओ, same product है. So they don't incur selling cost. Generally low level of selling cost in the monopoly because they don't have any competition and they have to inform the buyers that
दे आर देयर, जस्ट उसके लिए वो एडवर्टाइज करते हैं, अदरवाइज दे डोंट एडवर्टाइज. You will see very less advertisement of the railways on the news channels or in the newspapers. Reason is very simple, because they are the only sellers and everybody knows that. ठीक है. So just to make the customers aware, एक थोड़ी फॉर एडवर्टाइज करेंगे, not to the extent, right, जैसे monopolistic competition करते हैं. Due to severe competition, selling costs are vital to persuade the buyers. You have to, right, pursue the buyers that your product is different than the others. Your product is different than others. Why it is different? Because selling differentiated products, close substitute but differentiated products. So to make that differentiation, right, known to the buyers, you have to incur a huge advertisement cost. Right, अगर आप देखते हो, there are many thinkers, right, जो बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस या क्रिकेट प्लेयर को आप एडवर्टाइजमेंट के लिए लेते हो ना, दैट कॉस्ट इज वेरी हाई एंड अल्टीमेटली दैट कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर्स ओनली. सो व्हाई टू स्पेंड सो मच ऑन सच, राइट, एडवर्टाइजमेंट? या इतने बड़े प्लेयर्स को लेके आप क्या करने वाले हो, या इतने बड़े एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को लेके यू आर इंकरिंग द कॉस्ट. अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है एंड दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द buyer. Instead of spending on the advertisement, spend on the research and development. अच्छे products करो and simple advertise करो, and that will reduce your cost. वैसे भी आप profit कमाओगे. But देखो, advertisement करने का तरीका totally अलग होता है. जो advertise होता है वो generally मिलता नहीं, ये भी है. That is another, right, perspective, कि जो बोलते हैं वो एक्चुअली मिलेगा नहीं. Then price being given, right, price being given, ठीक है, price being given decides only quantity of the output. Yes, मैंने बोला था. देखो, अब याद रखना किसको क्या करना है. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को जस्ट क्वांटिटी ढूंढना है at which it will be maximizing the profit. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ढूंढना है. सिर्फ प्राइस क्यों नहीं ढूंढनी है? प्राइस इज गिवन बाय द मार्केट. प्राइस तो मार्केट ने दी है, इट हैज टेकन द प्राइस फ्रॉम द मार्केट. खाली वो वाला आउटपुट ढूंढना है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा एट दैट प्राइस. सिंपल मोनोपोली को दो चीजें ढूंढनी है, उसको आउटपुट भी ढूंढना है और प्राइस भी ढूंढनी है. इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट को तीन चीजें ढूंढनी है. एंटायर आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, एंटायर आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज जहां पे मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू. जो एंटायर आउटपुट है, हाउ इट शुड बी distributed between the sub markets in a such a way that marginal revenues in the sub market will be equal and it will be equal to marginal cost as well. वो एक दूसरे के साथ इक्वल होनी चाहिए. marginal revenues in the sub market and should be equal to marginal cost. This is second. and फिर एक बार उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया तो मार्केट में कितनी प्राइस चार्ज करनी है वो. So discriminating monopolist has to decide three things: total output to be produced, how it should be distributed, and what should be the prices in the different sub market. Inelastic market में जनरली प्राइस ज्यादा रहेगी than the elastic market in his case. ठीक है, उसको तीन चीजें. And what about the monopolistic, like simple monopoly, he has to decide the two things: equilibrium price as well as equilibrium quantity. ठीक है, आगे next decides both price and output, right. यहां पे लिखना discriminating three questions. He has to answer the three questions, right ना. three questions यहाँ पे था, if you remember. How much the total output he should produce. पेज नंबर है 4.187. Marginal cost of the production should be equal to aggregate marginal revenue. ये वाला पॉइंट.
marginal cost is equal to aggregate marginal revenue, OM. Second, how much total output should be distributed between the two sub-markets such that marginal revenue in the sub-market A is equal to marginal revenue in the sub-market B is equal to any other market. if 10 मार्केट तो 10 मार्केट का देखना होगा, is equal to marginal cost. So this level. यहाँ पे you can see marginal revenue is this, marginal revenue is this, marginal revenue is this, they are same and even they are equal to marginal cost. समझ में आ रहा है? So OM1, OM2. Then and the third, the prices they should charge. So एक बार आपका आउटपुट पता चला तो यहाँ पे प्राइस इतनी है और यहाँ पे प्राइस इतनी है. The three things. ठीक है, आगे नेक्स्ट. देखो कितने डीप में डिफरेंसेस दिए उन्होंने. Decides both the price and the output. Decides both the price and the output. Two things. Yes. आगे. Product is produced at a minimum average cost. लिख लेना optimum form. Perfect competition in the long range is optimum form. Equilibrium form at a optimum level. सबसे lowest point पे. Produced at a declining portion of the average cost curve. Yeah, they are suboptimum. Produce at declining portion of the average cost. लिख लेना excess capacity. इनके केस में excess capacity होती है. What is the excess capacity? Equilibrium quantity is less than optimum quantity. Optimum quantity ज्यादा रहेगी. So you are producing less than the optimum quantity. The difference is your excess capacity. Equilibrium quantity is the highest and produce at a least cost. Yes, equilibrium quantity is highest because perfect competition में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इसलिए क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी एंड कॉस्ट भी सबसे कम होगी. क्यों? बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट, राइट. यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सबसे कम रहेगी क्योंकि मोनोपोली वाले ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे एंड देयर कॉस्ट इज नॉट ऑप्टिमम कॉस्ट, इज एट ए हायर कॉस्ट. Equilibrium quantity less than other market and as compared to that perfect competition इनकी cost of production ज्यादा होगी. Equilibrium quantity is less than optimal, right? There is a excess capacity. देखो नीचे लिखा है. सबसे ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कहाँ पे होगी? परफेक्ट कंपटीशन में. वहां पे प्राइस सबसे कम रहेगी, उससे थोड़ी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी. मोनोपोलिस्टिक में वहां पे प्राइस उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी एंड सबसे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड होगी कहां पे? मोनोपोली में, उससे सबसे हाईएस्ट प्राइस रहेगी. नो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, इसको लिख लेना. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ये मींस यू आर चार्जिंग प्राइस एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट. Consumers can be exploited by charging higher prices. Average revenue is greater than marginal cost. They are not exploited, but they are influenced. Consumers are influenced through price and the non-price competition. They go on the advertisement. Consumers, भीड़ बोलता हूं मैं उसको, भीड़. That happens in the tuitions as well. ये मैंने देखा है. They don't actually, मेरा दोस्त गया तो मैं भी जाऊंगा. ये जो कंसेप्ट है ना, वो है वो. राइट, भीड़ है, भीड़. यू एक्चुअली डोंट वेरीफाई कि आपको सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी. भीड़ है ना, सब ले रहे तो हम भी जाएंगे. Consumers are influenced through price and the non-price competition. Then, efficient allocation of the resources. Efficient allocation of the resources means lowest point of the LAC. Inefficient allocation of the resources, suboptimum, inefficient allocation of the resources. The next, no wastage of the resources. No wastage of the resources. Wastage of the resources, huge wastage of the resources for the advertisement. You incur unnecessary cost.
ठीक है. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द मार्केट इज ओलिगोपोली मार्केट. ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट. लेट्स कंटिन्यू. ओके, नाउ ध्यान देना. फर्स्ट पॉइंट, oligopoly markets are also very common along with monopolistic competition. Actually, it is difficult to differentiate whether it is an oligopoly market or monopolistic market. The main difference is, first, if there is a single seller, we call it a monopoly. If there are just two sellers, we call it as a duopoly. If there are more than two, up to 10, two से ज्यादा और up to 10, we call that market as ओलिगोपोली मार्केट. एक जस्ट मैं रेंज बोल रहा हूं, इतना एक्यूरेट भी नहीं कि 2 3 3 4 5 टू अप टू 10, बट एक नॉर्मली बोला जाता है, राइट. सो 2 to 10. एक्चुअल में देखा जाए, टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज नो ऐसे. duopoly is a subset of oligopoly. duopoly लिख लेना, duopoly is a subset of oligopoly. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, duopoly is a subset of oligopoly. So sorry, market ना. लिख लेना, ओलिगोपोली. ठीक है, ध्यान देना. इफ वन सेलर, इसको हम बोलते हैं मोनोपोली. इफ 2 to 10 सेलर्स, आपके मॉड्यूल में लिखा है, इसको ओलिगोपोली बोला जाएगा. एंड इफ मोर देन दैट, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक. देन if very large number of sellers, obviously that has to be perfect competition. Selling homogeneous product, sellers यहां पे लिखना, with differentiated products. Sellers selling जब भी डिफरेंशिएटेड आंसर रहेगा, डिफरेंशिएटेड, इट हैज टू बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, सेलिंग, सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट. perfect competition. So 2 to 10, 2 to 10 ओलिगोपोली. सो इसका मतलब ड्यूओपोली जो बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओलिगोपोली. देयरफॉर ड्यूओपोली इज सबसेट और पार्ट ऑफ. ऐसे ड्यूओपोली एज सच कोई मार्केट टाइप नहीं है,
उसको ओलिगोपोली में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो डिओपोली इज पार्ट ऑफ, इसलिए हम अलग से डिओपोली स्टडी नहीं कर रहे हैं, पार्ट ऑफ ओलिगोपोली। लाइक आई कैन गिव एन एग्जांपल, टुडे टेलीकॉम सेक्टर में 4 ही प्लेयर है, आइडिया, वोडाफोन एक ही कंपनी है, देन बीएसएनएल, एयरटेल एंड जियो। उसमें से बीएसएनएल एंड आइडिया वोडाफोन कभी भी बंद हो सकते हैं। सो इट विल बिकम, इट इज अ ओलिगोपोली बट इट विल बिकम राइट, इट इज ओलिगोपोली, इट विल बिकम परफेक्ट डिओपोली बन जाएगी फिर, पार्ट ऑफ ओलिगोपोली ओनली। समझ में आ रहा है? सो इट इज ऑन ए वर्ज ऑफ बिकमिंग डिओपोली, मे बी आने वाले 4-5 साल में हो सकता है, ठीक है। देन आगे मींस ओलिगोपोली में लिख लेना, डैश करके लिखना, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स, जब भी वर्ड फ्यू सेलर्स आएगा ना, आग बंद करके आंसर लिखना है ओलिगोपोली। सेलर्स, सेलिंग, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मैं आपको सिंपल हिंट देता हूं ओलिगोपोली का आंसर लिखने का, जहां जहां पे फ्यू सेलर्स वर्ड रहेगा, आंख बंद करके ओलिगोपोली लिख दो, आंख बंद करके, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, they may be selling homogeneous product, if they are selling same product, few sellers selling same product, it will be a perfect oligopoly, pure oligopoly बोलते हैं, मैं टाइप समझाने वाला हूं। एंड अगर दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, उसको डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोली जाती है, या हेट्रोजेनियस ओलिगोपोली बोल, हम आने वाले टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में, ठीक है। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, राइट। देखो मोनोपोली वाला, ही सेल्स यूनिक प्रोडक्ट, टोटली यूनिक, यहां पे लिखना मोनोपोली सेलिंग हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर आंसर कैसे लिखे, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं, सो दैट यू कैन व्हाइल राइटिंग द आंसर, बिकॉज कंफ्यूजन रहेगा। जनरली कंफ्यूजन कहां पे रहता है, मोनोपोलिस्टिक आंसर है या ओलिगोपोली आंसर है, इसमें सेलर सेलिंग हाईली डिफरेंशिएटेड, इतना हाईली डिफरेंशिएटेड है ना कि उसके जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाईली डिफरेंशिएटेड। And monopolistic market, right, selling differentiated products but they are close substitute, ठीक है, क्लियर है? आगे सो duopoly is a part of oligopoly, ये हमेशा याद रखना, duopoly is not a separate market structure, it is a part of, right, oligopoly, and telecom sector is on a verge of becoming the duopoly। ये कहां पे बुक में नहीं लिखा है आपके, but there is a fact। नेक्स्ट ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ओलिगोपोली मार्केट, there are few sellers selling either homogeneous or differentiated products to the large number of buyers, to the large number of buyers, buyers are always large। there is also market type monophony, जिसमें एक ही बायर होता है, वो बाद में करेंगे। ऐसे भी होते कि जैसे हम सेलर के बेसिस पे मार्केट डिवाइड करते हैं, वैसे बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स के बेसिस पे भी हम मार्केट डिवाइड करते हैं, मोनोफोनी बोलते हैं उसको, मैं आऊंगा बाद में, ध्यान देना। सो एवरीवन, सो अब मैं ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल देता हूं, एंड मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं, यू विल फेस दिस एग्जांपल, और जो मैं अभी बोल रहा हूं, राइट, आपको जब आप सी फाउंडेशन पास होगे एंड फॉर द इंटर क्लासेस
when you will enter the prestige point, you will understand this market more clearly. Reason, there are few sellers, right? There are few sellers providing the inter coaching, एंड आप जाओगे तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपके घर वालों ने भी इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा आपको. आप आने पे आपको पानी देंगे, आपको पूछेंगे, सब 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 चीजें. जैसे आप एंट्री करोगे तब से जगह जगह पे आपको हाथ में पैम्पलेट्स देंगे, जगह जगह पे देंगे. दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट है. इंटर के क्लासेस, दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट व्हाई वी आर बेटर, व्हाई वी आर बेटर देन अदर्स. आपको इतनी जबरदस्त ट्रीटमेंट मिलेगी कि आपने कभी लाइफ में सोची भी नहीं होगी. इतनी अच्छी ट्रीटमेंट आपको किसी ने भी नहीं दी होगी. ठीक है. एंड एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा. दैट इज ऑल्सो रियलिटी. सो Ekatam is one good thing that our students remain with us. That is good thing. They have seen us from the 11th basically, foundation से. We are the only coaching classes जो actually 11 से बच्चे लेते हैं. क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. तो there are few sellers selling the same product, right, or the services, right? I call, right, we are giving services and they are selling product. ये मुझे लगता है as a student मैंने भी ये फेस किया है. एंड मैं जनरली ज्यादा स्टूडेंट्स में रहता था, सो दोस्तों के साथ ज्यादा घूमता था, तो आई हैव सीन दैट. सो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि मेरा सरनेम झावरे होगा व्हेन आई वाज स्टूडेंट, या हमारी कोचिंग क्लासेस है, मेरा भाई सिखा रहा है, लाइक दैट. मैं घूमता था ना दोस्तों के साथ. आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, तो ये सब चीजें होती है ना. अगर आप अलग से रहते हो तो इतना आपका पब्लिक कांटेक्ट नहीं आता है. मेरा पब्लिक रिलेशन हमेशा स्ट्रांग है. सो मैंने देखा ये सब चीजें. नाउ अब ये जो बोल रहा हूं ना, फ्यू सेलर्स सेलिंग ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट, ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट, एंड द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय देम ओनली. जब भी पुणे में आप लोगे तो यू राइट सीए के क्लासेस, you will find Ekatam and some others, right? Obviously leading is Ekatam, there is no doubt. मैं Ekatam में काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं, अगर मैं कहाँ पे दूसरी जगह पे भी काम करता तो भी मैं यही बोलता. Ekatam is leading, there is no doubt, to be very frank, no doubt. बाकी एडवर्टाइज वगैरह कुछ भी करते होंगे, यूट्यूब यूट्यूब वो चिल्लाना बिल्लाना वो हम लोग नहीं करते, हमसे नहीं होता वो. गाने गाना वगैरह हार्डली, मैं कभी एक आधे बार गाना गाता हूँ, वो भी अपना एक ही गाना फिक्स रहता है, राइट? या अभिषेक सर का तो पूछो ही मत, गाना मतलब एरे रे पावसा, उसके आगे उनको आता नहीं होगा. सो आई सिंपली, वी डोंट स्पेंड दैट मच टाइम. स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके इसमें होते हैं. एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेटेजी. सम विल सिंग, सम विल, व्हेन वी आर टेकिंग लेक्चर्स ऑनलाइन, सम विल स्टार्ट पोस्टिंग इंस्टाग्राम पे, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, ये लफड़ा वो लफड़ा, राइट? सिंगिंग बिंगिंग डालते बैठेंगे. ऐसे भी लोग होते हैं, एंड स्टूडेंट्स गेट अट्रैक्टेड टू दैट एज वेल. सो देयर स्ट्रेटेजी इज अदर देन टीचिंग, स्क्रीनिंग एंड डूइंग टाइम पास. बच्चों को पसंद है, इस एज में वो पसंद है, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? मे बी मैं स्टूडेंट होता तो मुझे भी पसंद आता. इसलिए हम बोलते हैं कि जो एकत्व में बच्चे आते हैं, दे आर मोर करियर ओरिएंटेड देन द अदर्स. ये रियलिटी है. ये दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग आर्टिकलशिप. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तब आपको पूछते क्लासेस किधर की है, एंड अगर आप एकत्वम का नाम बोलते हो ना, यू गेट अ फर्स्ट प्रेफरेंस. दैट इज अ रियलिटी. आज बोलोगे सर आपका क्या मार्केट कर रहे हो क्या? नहीं. टू बी वेरी फ्रैंक, जिस फर्म में मैंने काम किया है, मैंने आपको बोला, जोशी इंसानी, मैंने बोला था आप लोगों को, राइट? एनपीओ सिखाते टाइम मैंने बोला था, पुणे ब्रांच का ऑडिट उनके पास है, राइट? था, अब भी का मुझे नहीं पता. मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पे अदर देन एकत्वम एक भी बच्चा लिया नहीं जाता. दैट इज इवन टुडे द रियलिटी. वो मैंने नहीं की है, मैं वहां पे जाने के बाद नहीं किया है, मेरे पहले से. बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर द स्टूडेंट्स ऑफ द, राइट, आर क्लासेस. ऑल द पार्टनर्स सीनियर है, उनके बेटे मेरे से सीनियर है, उनके बेटे भी वहां से ही पास आउट है. तो दे नो यहाँ पे कंसेप्चुअली सीखा जाता है, ऐसे रट्टाबाजी नहीं होती, या हर चीज को लॉजिक दिया जाएगा, अटैच किया जाएगा लॉजिक, सो दैट यू कैन एक्चुअली जब काम करना है, वहां पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है.
दो होता है वहां पे। अगर आप बोलते हो एकतम से, दे एक्चुअली कंफर्म इन द ऑफिस। हमारे ऑफिस में फोन आता है, ये बच्चे आपके पास थे क्या? अगर आप बोलते भी हो हम वहां से पास आउट है, एक्चुअल में फोन आते हैं। ऐसे मैं आपको एक ऑफिस जहां पे मैंने काम किया बोल रहा हूँ, पुणे के बिग ऑफिसेस वैसे है, राइट? बीके खरे ले लो, पीजी भागवत ले लो। बीके खरे से अभिषेक सर ने आर्टिकलशिप की है, पीजी भागवत से हमारे अंकल ने आर्टिकलशिप की है, जोशिन सहानी जहां से मैंने आर्टिकलशिप की है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं कि इन ऑफिसेस में भी स्टिक इंस्ट्रक्शन था कि लाइक मेरे ऑफिस में कि ट्रीट हिम एज इफ ही इज नॉट रिलेटिव ऑफ द झावरे सर। ये क्लियरली था, नॉट रिलेटिव ऑफ द अभिषेक। उसको ऐसे सिखाओ जैसे वो कोई नहीं है। आप आपकी रिस्पॉन्स, उसको जैसे ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करो। इतना स्ट्रिक्ट था, छुट्टी नहीं देनी है, कुछ नहीं देनी है, जैसे बाकी लोगों को ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करो। आई स्टिल रिमेम्बर। सो और ऐसे मैं आपको ऑफिस दिखा सकता हूँ। ये अब भी नहीं समझेगा, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जब इंटर निकलोगे ना तब आपको समझेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सो हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कोई फीस कम रख रहा है, देयर आर क्लासेस जो फ्री में भी ले रहे हैं, फ्री में भी ले रहे हैं, बट वी आर नॉट हियर टू डू द चैरिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वंस यू पास आउट यू विल स्टार्ट अर्निंग द मनी। सो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड टुडे, देन ओनली यू कैन अर्न टुमारो। फ्री में भी ले रहे हैं ना इसे क्लासेस, फ्री में उनकी स्ट्रेटेजी फ्री में करने से बच्चे आ जाएंगे। तो फाउंडेशन फ्री में देंगे तो इंटर में पैसे चार्ज करेंगे, वो थोड़ी आपको थ्रू आउट फ्री में सिखाने वाले। दिस इज वन स्ट्रेटेजी। अनदर स्ट्रेटेजी, नो स्टडी एट होम एट ऑल। ये स्ट्रेटेजी आई डोंट थिंक कि कैसे लोग बोल सकते कि नो नीड टू स्टडी एट होम एट ऑल। मतलब अब इस पे तो मैं बिलीव नहीं करता, बिकॉज वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है चिल्लाना, राइट? गाने भी नहीं गाना, डांस बिंस करना, पार्टी बेटी देना, राइट? जोर जोर से चिल्लाना, कलर चार्ट्स वगैरह बनाना, राइट? ये सब होता है। दैट इज अनदर स्ट्रेटेजी। बच्चों को अच्छा लगता है ये चीजें, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ये जो एक्चुअल में जो, देखो 100 बच्चों में से सब क्या सब ऐसे नहीं रहते। देयर आर सम कि जो एक्चुअली थिंक कि ये क्वालिटी है, वो भी है ना, कि अलग होते कि यार हमें एडिशनल सिखाया जाता है, हम पे ध्यान दिया जाता है, टिल आर्टिकलशिप हम पे ध्यान दिया जाता है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो ये फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं। ये एकत्व में होता है, ये एकत्व में होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। बिकॉज ये हमारा कल्चर है पहले से, पहले से मतलब इनबिल्ट कल्चर है। हम चाह के भी निकाल नहीं सकते, चाह के भी नहीं निकाल सकते। बच्चे सीए होने के बाद भी, राइट, हमारे पास आते हैं। मेरी तो फर्स्ट बैच तो अभी सीए फाइनल में, दे आर अपीयरिंग इन द मे अटेम्प्ट, जो आपके बाद मे अटेम्प्ट वाले, वो मेरी फर्स्ट बैच है जो सीए फाइनल में जा रही है। दे वर अपीयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद तो एवरी ईयर तो रहेंगे बच्चे, बराबर। सो ये मैंने देखा है, एंड मे बी दैट इज द रीजन, राइट? ऑब्वियसली बिजनेस तो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज नो वन इज हियर फॉर द चैरिटी। सच्ची बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज, कोई कम प्राइस चार्ज कर रहा है, कोई ज्यादा प्राइस कर रहा है। जो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, इतने इसमें भी लोग जीरो दे रहे हैं फिर भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, एंड बच्चे भी पे कर रहे हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग। सो देयर आर स्ट्रेटेजीज, में ओलिगोपोली मार्केट समझाओ, देयर आर स्ट्रेटेजीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी। दूसरा एग्जांपल कि दे, एज दे आर वेरी few sellers, they keep close watch on their competitors. क्यों? बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने बोला, फीस ही नहीं लेना, इट कैन बी स्ट्रेटेजी, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ये गाने भी नहीं गाना वगैरह, वो स्ट्रेटेजी। तीसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि राइट कलर नोट्स वगैरह, इसकी स्ट्रेटेजी, राइट। फोर्थ स्ट्रेटेजी की एक्चुअली सिखाया जाएगा कंटेंट। ऐसे 4 स्ट्रेटेजीज है। एवरीवन कीप्स वॉच ऑन ईच अदर, ये होता है। अब ऑब्वियसली मुझे सब पता है, बिकॉज आई ऑल्सो कीप वॉच। मुझे बच्चे बोलते हैं एक्चुअली, वहां से मुझे पता चलता है। बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो एवरीवन, बिकॉज दे आर वेरी लेस, द मार्केट डोमिनेटेड बाय फ्यू सेलर्स इज ए ओलिगोपोली, एंड एवरीवन कीप्स क्लोज वॉच, कीप्स क्लोज वॉच ऑन अदर्स, ठीक है। अगर किसी ने प्राइस कम कर दी, एवरीवन विल डिक्रीज द प्राइस। किसी ने प्राइस इंक्रीज की, others will not increase the price, because अगर कोई प्राइस इंक्रीज करता है तो there will be some students जो उनके पास आएंगे। ध्यान देना। so and everyone keeps watch how the others keep their timetable,
मतलब क्लैश ना हो, क्लैश ना हो। अब एग्जांपल बोलता हूं, अगर किसी ने एक सब्जेक्ट का रखा है एंड ही इज अ गुड इन दैट, तो बाकी लोग उसके साथ क्लैश नहीं करेंगे, नहीं तो उनके स्टूडेंट चले जाएंगे। सो ये है कि अनलेस एंड अंटिल एकतम रिलीजेस टाइम टेबल, राइट, अदर्स डू नॉट रिलीज देयर टाइम टेबल। एंड प्रेस्टीज में बिफोर वी एंटर देयर दे हैड एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल, हर एक का एक टाइम टेबल था, सबका सेम टाइम टेबल होता था। मतलब किस, इट इज ए कोलूजन, कोलूजन, सब सेलर साथ में आके सेम प्राइजेस रख रहे हैं, सेम टाइम टेबल रख रहे हैं, इससे किसी का नुकसान ना हो। Students used to suffer, they used to keep higher price intentionally, and everyone has same timetable. When we enter here, right, we change, हम हमारे हिसाब से टाइम टेबल रखने लगे, हम हमारे हिसाब से टाइम टेबल। सो नाउ इट स्टार्टेड, राइट, इन उनके बच्चे अपने पास भी आने लगे क्यों? बिकॉज जो हम इंदुलाल में इंटर लेते थे तो ये डिस्टेंस होता था, अब प्रॉपर मार्केट में आ गए, सपोज प्रेस्टीज इंटर के लिए, तो वहां पे आ गए। उससे होना होना क्या लगा, हमने हमारा, वी डिडंट चेंज अकॉर्डिंग टू देम, वी मेड देम चेंज अकॉर्डिंग टू अस। हमने हमारा टाइम टेबल कभी चेंज नहीं किया। आज भी वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, आई रिमेम्बर, इंटर की बैच हमने दिसंबर में स्टार्ट की, नवंबर में एग्जाम हुई, दिसंबर फर्स्ट वीक हमारी इंटर की बैच स्टार्ट हुई। एंड तब उनको पता चला पहले भी बैच स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दे स्टार्टेड बैच इन जनवरी। तब तक हमारा ऑलमोस्ट, हमने एक मंथ स्टार्ट भी किया था। उसका फायदा क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, जिन बच्चों में जनवरी दिसंबर में स्टार्ट किया था उनका सिलेबस डन था, एंड देयर आफ्टर वी आर टेकिंग रिवीजन एवरी नाइट, हमारे रिवीजन चलते हैं उनके। सो और बाकी लोग जिन्होंने लेट स्टार्ट किया उनका क्या हुआ कि सब लेक्चर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब जैसे हम लेक्चर ले रहे वैसे नहीं ले रहे, पेन ड्राइव ले लो, आप आपका देखो, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, खत्म, नो वन इज देयर टू सॉल्व द डाउट, नथिंग नथिंग नथिंग। सो we decide our own timetable, we take action according to that, and others do follow that, ये होता है। So it is a team efforts obviously, right? So close watch on the strategies of other sellers. So पहले क्या बोला मैंने, right? Few sellers dominating the market and they keep close watch on the strategies of other. जब तक हम हमारी फीस अनाउंस नहीं करेंगे, बाकी लोग फीस अनाउंस नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी फीस बाकी लोगों से थोड़ी प्रीमियम फीस रहती है, 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा तो रहेगी रहेगी, बिकॉज वी फील वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। एंड बाकी लोग सोचते हैं अगर इनकी इतनी फीस लगेगी तो वैसे भी नहीं चलने वाला अपना। थर्ड मैं बोल रहा हूं कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस, इसमें इंटरडिपेंडेंस है क्या, जब तक एकतम टाइम टेबल डिसाइड नहीं करेगी तब तक ये लोग नहीं करेंगे। या पहले मैं बोलता था बिफोर एकतम एंटर इनटू प्रेस्टीज, राइट, दे उनका टाइम टेबल इंटरडिपेंडेंट होता था, एक दूसरे के साथ कोलूजन करके दे यूज्ड टू डिसाइड द प्राइजेस एंड द टाइम टेबल। इंटरडिपेंडेंस है, माय स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन द अदर्स, अदर स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन, राइट, मैं कुछ एक्शन लेता हूं, बाकी लोग मुझे फॉलो करेंगे, उन वो जो कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं मेरी फिर से स्ट्रेटजी चेंज करूंगा। मतलब जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, कंसिडरिंग कि ये लोग इसको ऐसे रिवर्ट करेंगे, they will revert and again I will change my strategy. My strategy depends on theirs, their strategy depends on mine. And here is a group behavior. Group behavior होता है, they come together and they collude. ये होता है, ठीक है। So let's come to the point. So अभी हमने क्या देखा, right? उसके फीचर्स देखो क्या लिखा है, right? Okay. ये इंपॉर्टेंट है, ओलिगोपोली, right, is often described as competition among the few. मैंने पहले बोला among the few. Professor Stigler defines monopoly as a situation in which, underline that, ये नाम पता होगा, right, situation in which firm bases its market policy in part, not entire market policy, but at least some part of your policy depends on the others, right? Situation in which a firm bases its market policy in part on the expected behavior of the few close rivals. जो आपके कमी सेलर्स हैं उनके हिसाब से, उनको ध्यान में रख के you decide your sales strategy, your any policy, pricing policy, marketing policy, समझ में आ रहा है, output policy depends at least some part on the basis of others. In other words, when there are few
2 to 10 sellers in a market selling homogeneous or differentiated products, right? लिख लेना ये इसको, a few sellers selling homogeneous or differentiated products, it is oligopoly. Oligopoly mostly arises due to those factors which are responsible for emergence of monopolies. वहां पे हमने देखा why monopolies become government patronage, patents, copyrights, etc. Similar reasons like oligopoly को होते. Next, unlike, because they dominate, oligopolies do dominate. Unlike monopoly, where a single firm enjoys, unlike monopoly, right, where single firms enjoys absolute market power, इसमें वो market power is divided between the, right, is divided between the few sellers. Under the monopoly, a few sellers exercise their power to keep possible competitors out. Then consider the examples of the cold drinks in India. Underline cold drink industry. ये MCQ के लिए पूछते हैं. Cold drink industry or automobile industry, telecom industry, insurance industry, right? Cold drink industry or automobile industry. These are some, there are a handful firms manufacturing cold drinks in India. Similarly, there are few firms in the automobile industry in India. So हमें लगता है automobile हम monopolistic आंसर लिख के आते हैं, but module में automobile is the example of what? Oligopoly. So answer is oligopoly. Then similarly, there are few firms in a automobile industry in India. Airline industry, underline. Obviously, they are the best example. Airline industry, petroleum refining industry, Bharat Petroleum. बराबर ना? देखो, Bharat Petroleum, then Indian Oil, HPCL, ईसार वगैरह, ऐसे 4-5 ही हैं, ज्यादा नहीं है. So they are 2 or less than 10. Petroleum refining, power generation and supply, right? In most of the parts of the country, right? Mobile telephony, telephone industry, that is, right? Internet services providers are some of the examples of the monopolistic market. Then these industries exhibit some special features which are discussed in the following paragraphs. मैं पहले यहाँ पे आता हूँ characteristics में, ठीक है? The oligopolistic market, ये मैंने अभी डिस्कस किया. The oligopolistic market, right? Characteristics of oligopolistic market. The oligopolistic industry is dominated by small number of large firms. Underline, small number of large firms. Number of firms is less, but they are very large. ठीक है? Then each of which is comparatively the large relative to the total size of the market, means they have proper market share. And to some extent they control the market. To some extent they control the market. Right? ऐसे नहीं कि firm itself is industry. अगर firm खुद industry है, तो monopoly हो गई. It is not the industry. It has like 20-30% share in the. Everyone has 20-50%, 20-30% ऐसे पकड़ के चलो. तो 5 firm है तो 20-20 के अराउंड रहेगा. ठीक है? आगे क्या लिखा है? These large firms exercise considerable control over the market. They have control over the market. An oligopoly market may have large number of the firms, along with very large firms, right? But most of the market share will be enjoyed by few large firms, and therefore they conquer and retain the market. मतलब दो cases, few sellers, लिख लेना ये, right? Oligopoly में लिख दिया. Case 1, few sellers, few large size sellers, few but large sized firms. दूसरा case 2, large number of sellers but only few are, right, large sized and they dominate.
and they dominate. And they dominate. एक क्या मैंने बोला कि ऐसा मार्केट जिसमें सेलर्स ही 2-3 है, नॉट मोर, फ्यू सेलर्स, बिग सेलर्स, फ्यू सेलर्स. या दूसरा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ट्यूशन क्लासेस जैसे मैंने बोला, सीए क्लासेस, you will find n number of classes, but उसमें से the market is dominated by few only. ठीक है, सो ऐसे मार्केट को हम बोल सकते हैं इट इज ए ओलिगोपोली मार्केट. देन आगे, सो फ्यू सेलर्स, few large sellers only, या large sellers but उसमें से some of them only dominate the market. आगे, there are strong barriers to the entry. Barriers to the entry, this is another feature. Then आगे, strategic interdependence. मैंने बोला firm strategy depends on the strategy of others. ठीक है, because they are, even if they are large in the number, only few are significant. छोटे छोटे प्लेयर्स का कोई लेन देन नहीं, they cannot change anything. या अगर थोड़ी सेलर्स है, they are large in the enough, so you can keep watch on the few sellers and accordingly you will make your strategies. You have to be very careful. If you take the strategy, they will revert, they will prepare their strategy to counter yours. अगर राइट वो जो नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे फिर उसको भी हमें काउंटर करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ध्यान देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओलिगोपोली इज interdependence in decision making. Interdependence in the decision making, underline that. Decision making of the few firms which comprise the industry. While taking the decision, they consider how the other firms will react. Then, since there are only few sellers, there will be intense competition among them. Yes, under oligopoly, each seller is big enough to influence the market. Yes, a firm has to necessarily respond to the rivals' actions, right? And simultaneously, the rivals also respond to the firm's action. ये होता है interdependence. Then, this is because when the number of the competition or competitors is few, any change in the price or the output or both, change in the price, output, quantity or product by a firm will have direct effect on the fortunes of the rivals, right? Who will then retaliate by changing their own prices, output or advertising technique as the case may be. As the case may be. So when this lockdown started and it is expected कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 20-25 दिन में, मार्च अप्रैल में, we are already started with the batches. You are the witness. आपको पता है हमने स्टार्ट किया था, हमारे एडमिशन ऑलमोस्ट फुल भी थे. एक तो मैं ऑलरेडी स्टार्टेड देयर 12th एज वेल एज फाउंडेशन. इंटर तो पहले से चल रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो जनरली मैंने बोला दिसंबर में स्टार्ट हुए थे हमारे, बराबर. सो जब एक्सटेंड होने लगा एंड वी आर इनपुट, यार हमारे 11 से बच्चे, सो बाद में ये दिखने लगा कि हमारे क्लासेस चल रहे, बाकी क्लासेस नहीं, उनमें एडमिशन नहीं हो रहे थे. दैट इज द रियलिटी. तो दे स्टार्टेड कमिंग अप फ्री कोचिंग, बिकॉज इंटर में कौन आएगा फिर? अगर फाउंडेशन में, तो इंटर में कौन आएगा? हु विल टेक द रिस्क? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इंटर में नहीं रहेगा, तो टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ऐसे भी बच्चे रहेंगे, आपके फ्रेंड रहेंगे, बट फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या होता है उनको ही पूछो, दे विल टीच, टेल यू. सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देयर आर राइट, कोई टेस्ट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, राइट. सो उन्होंने वो स्ट्रेटेजी बनाई, चलो ऐसे बच्चे नहीं आएंगे तो ऐसे तो करेंगे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक कि ऐसे क्यों कर रहे हो. ऑब्वियसली राइट, वी आर इन टच विद देम. ऐसे नहीं कि हमारी बात नहीं होती है, बट दे से कि देयर आर नो स्टूडेंट्स, वी हैव नो अदर ऑप्शन. सो इट्स वेरी सिंपल, राइट. सो देयर स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन अस. फिर हमारा डिस्कशन हुआ कि क्या करना है, राइट. वी डिसाइडेड, राइट, अगर हम सर्विस दे रहे तो हम चार्ज करेंगे,
सिंपल है, हम किसी से फ्रॉड भी नहीं कर रहे कि हमने बोला पहले 10,000 दे दो और बाद में 40,000 ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं। एडमिशन लेते टाइम ही बोला था हम इतने लेने वाले, हमने उतना लिया। हम कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे या कुछ हम गलत तो नहीं हो रहे, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स की बैच है, दिस इज माय बेस्ट बैच टिल डेट। मैं खुद, मुझे लगता है आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, अकाउंट्स में भी आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम। फेस टू फेस में इतना टाइम स्पेंड नहीं होता। एंड आपको सिखाते सिखाते मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं सीखने को मिली, ये मैं समझता हूँ। सो ये जो है ना, राइट, ये फेस टू फेस से भी बेटर हो रहा है, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है। ऑब्वियसली एज ए टीचर वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। मुझे नहीं पता बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, बट एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं फेस टू फेस से भी ज्यादा यहाँ पे एफर्ट दिया इस बैच में आपके। बिकॉज आई चेक द लेक्चर्स, मैं बाद में लेक्चर चेक करता हूँ क्या कंटेंट मैंने कवर किया क्या नहीं। आई हैव नोट्स पहले के जो मैंने लिख के दिया था आप लोगों का, इट इज इम्प्रूविंग, इट इज इम्प्रूविंग। सो कोई बच्चे जो 2-3 बच्चे जो रिवीजन के लिए कभी कभी आपके लेक्चर्स कोई टॉपिक के लिए अटेंड भी करते, पहले वाले बच्चे, तो दे आल्सो से सर you are taking much more than what you taught us early in the earlier batches. It is like we are into learning phase. I am into learning phase. मेरा क्या 5th year of teaching है, मुझे बहुत आगे जाना है। अभिषेक सर has been teaching for 13-14 years. तो obviously, right, वो एक स्टेज होती है, लर्निंग स्टेज होती है। We as a person also keeps on learning many things. So आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजी क्या होती है ना, डिपेंड्स ऑन द राइट स्ट्रैटेजी ऑफ अदर्स। We started the lectures, we started collecting the fees, हमने स्टार्ट किया। You won't believe, मैंने 10 से लोगों को नहीं बोला है बाद में एडमिशन में मैंने नहीं बोला है, हट के लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ या कोई मुझे रेफरेंस मिला है। एंड आई कैन गारंटी देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे पूछा था भी था, उनका फ्रेंड वगैरह, मैंने बोला आई वोंट गिव एडमिशन, मैंने नहीं बोला है। Who will take the responsibility if they join in May and June? Who will be taking responsibility? एक बच्चे की वजह से नाम खराब नहीं करना है, खाली पैसे कलेक्ट करने इसलिए नहीं। मैंने बोला नवीपेट वगैरह हमारे इसमें एडमिशन ले लो, दे विल गिव यू एडमिशन, मैं नहीं दूंगा। है ये रियलिटी है, मैंने किया है, नहीं देता हूं मैं। अभी 12th के लिए कल एक एडमिशन के लिए इंक्वायरी आई थी, 3 लोग थे, 3 लोग, मैंने नहीं बोल दिया। मैंने बोला नहीं चाहिए, एडमिशन नहीं होते तो चलेगा, बट कौन सिखाते बैठेगा उनको पहले से। इतने लेट नींद से उठे, मतलब आप समझ सकते हो ना क्या सिंसियरिटी होगी। सिंसियरिटी भी समझ सकते हो ना आप। जो क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट हुए, बच्चा अगस्त में आके बोल रहा है क्लासेस लगाने, तो उसमें क्या सिंसियरिटी तभी समझ में आता है ना। दिस इज बिकॉज when the number of competitors is few, any change in the price or the output by a firm will make others to change their price, their output and their advertisement strategies again. Then, right, okay, ध्यान देना, it is therefore clear that an oligopolistic firm must consider not only the market demand for its product, खुद की डिमांड नहीं समझनी है, खाली दूसरों की भी डिमांड समझनी है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट ऑल्सो रिएक्शंस ऑफ द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री टू एनी मेजर डिसीजन इट टेक्स, हाउ दे आर रिएक्टिंग, दैट इज इंटरडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। एन ओलिगोपोली फर्म दैट डज नॉट कंसिडर इट्स राइवल्स बिहेवियर और incorrectly assumes them is likely to suffer setback in the profit. So you should be careful about your rivals. Then second, importance of advertising and selling the cost. Importance of advertising and selling cost. You have to incur, yes, obviously, right? Like monopolistic competition, they also have to incur the advertisement cost, right? Selling cost. A direct effect of the interdependence of the oligopolist is that the firms have to employ various aggressive and defensive marketing weapons to gain greater share in the market or to maintain their share. Like when Jio came into, Airtel and others have to act very like उनको defensive strategy use करनी पड़ी। जो पहले एक्शन लेगा ना वो एग्रेसिवली लेगा, तो बाकी लोगों को डिफेंस करना होगा। तो उनकी स्ट्रेटेजी इसके लिए फिर से नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे जियो वालों ने वो फ्री पैकेज अनाउंस किए, एयरटेल हैज टू टेक डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज। सो इंटरडिपेंडेंस की वजह से you have to, in order to maintain your share or in order to increase your share, you have to incur huge advertisement और selling cost। या तो आपको डिस्काउंट देने पड़ेंगे,
या तो आपको एडवर्टाइजमेंट राइट उस लेवल पे करनी पड़ेगी। आगे, for this the firms have to incur a good deal of the cost on the advertising and other measures of the sales promotion. Therefore there is a great importance for advertising, great importance for advertising and selling cost in the oligopoly market, same like monopolistic competition. It is to be noted that the firms in such type of the market avoid price cutting. Underline that. It is not price war. It is not price war, right? So they generally they collude, they come together and they say कि we will not decrease the price. हम अलग ढंग से अपना अपना करेंगे, प्राइस कम नहीं करेंगे. Avoid price cutting and try to compete on a non-price basis, because if they start undercutting one another, a type of the price war will emerge, which will drive a few of them out, right? As customers will try to buy from the seller selling at a cheapest price. So generally price war nahi hone dete. For that purpose, they should come together. So there are two types of the oligopolies. एक होती है कोलिजिव ओलिगोपोली एंड दूसरी होती कॉम्पिटिटिंग ओलिगोपोली. कोलिजिव ओलिगोपोली मतलब क्या? ये लोग साथ में आके, सब लोग साथ में आके प्राइस आउटपुट डिसाइड करते हैं. नो वन विल इंटरफेयर इन ईच अदर्स, राइट? हम इतनी प्राइस रखेंगे और अपना अपना आउटपुट करेंगे, राइट? नो वन विल डिक्रीज द प्राइस, नो वन विल इंक्रीज द प्राइस, प्राइस विल रिमेन रिजिड, फिक्स्ड. वो कोलिजिव हो गए, सब साथ में आके. एंड दूसरी होती कॉम्पिटिटिंग, मतलब एवरीवन विल स्टार्ट कॉम्पिटिंग विद अदर्स. तो कोई प्राइस कम रखेगा, कोई एक पे एक सेल करेगा, ऐसे कुछ तो स्ट्रेटेजी लेके आएंगे. तो उसमें ऑब्वियसली सेलर्स का लॉस होता है फिर. सो कोलिजिव वर्सेस कॉम्पिटिंग, वो मैं लेने वाला हूं, जस्ट मैं अभी उसके रेफरेंस दे रहा हूं. मैंने ये समझाया था प्योर और परफेक्ट. मैं इसमें डीप में जाऊंगा, डोंट वरी. प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली वर्सेस डिफरेंशिएटेड और राइट imperfect. Pure oligopoly means selling homogeneous product. Few sellers selling homogeneous product. Differentiated or imperfect oligopoly means few sellers selling differentiated product. फिर मैंने आपको एंट्री के हिसाब से बोला, ओपन एंड क्लोज्ड. समटाइम्स एंट्री इज ओपन, उसको ओपन ओलिगोपोली बोले जाते हैं. एंड जहां पे एंट्रीज आर क्लोज्ड, बैरियर्स होते हैं, उसको क्लोज ओलिगोपोली बोलते हैं. कोलूसिव मतलब few sellers will come together, major sellers will come together, they will collude, right? They will come together and they will decide the price, output, everything. So that इसका एग्जांपल आप मैंने उस दिन दिया था, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई का फर्स्ट सीजन, राइट? फर्स्ट पार्ट देखो, राइट? अजय देवगन सबको लेके एक डिसाइड करता है कि नो वन विल इंटरफेयर इन ईच अदर्स, राइट? कोई एक दूसरे के टेरिटरी में आएगा जाएगा नहीं, राइट? दैट इज अ कोलिजिव ओलिगोपोली. एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली में मतलब ऐसे कुछ नहीं रहेगा, उसके पहले वो कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली होती है. एवरीवन इज ट्राइंग टू राइट कॉम्पीट विद अदर्स. देन आगे ग्रुप बिहेवियर. एक्चुअली हम 12th में ग्रुप बिहेवियर हमने स्टडी किया था इन मोनोपोलिस्टिक, राइट ना? हम एक्चुअली ग्रुप बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ ओलिगोपोली. द थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली इज अ थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर. अंडरलाइन दैट, थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर. ठीक है? not of the mass or individual behavior, right? And मतलब पूरे इंडस्ट्री को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, और नॉट ए इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर, इट इज अ कलेक्टिव ग्रुप बिहेवियर. इंडस्ट्री को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर को 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, हेवी ट्रक, हेवी राइट हेवी व्हीकल्स, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. समझ में आ रहा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ए ओलिगोपोली, उसको उस इंडस्ट्री को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ऑटोज वगैरह, देन 4 व्हीलर्स, समझ में आए, एसयूवीज या हेवी व्हीकल्स, ऐसे ग्रुप्स में उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा. सो इट इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर. एंड टू एज्यूम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑन द मोनोपोलिस्ट पार्ट, राइट, मे नॉट बी वेरी वैलिड. मैंने अभी तक ये बोला नहीं है उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल. आगे, there is right no generally accepted theory of the group behavior. The firms may agree to pull together as a group in the promotion of their common interest.
like all lawyers comes together and they appeal, all doctors come together and they appeal. Try to understand. So ग्रुप बिहेवियर है कि सब एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट? आगे क्या लिखा है पढ़ो, राइट? द फर्म्स में एग्री टू पुल टुगेदर एज अ ग्रुप इन द प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट. लाइक एग्जांपल, जब अभी मैंने उस दिन आपको बोला कि जब जियो वगैरह आ गए, राइट, तो इनिशियली जियो को टैकल करने के लिए ये बाकी लोग कौन, एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया साथ में आए एंड दे स्टार्टेड, राइट, डिस्कनेक्टिंग द कॉल्स फ्रॉम जियो टू देम. उनके कॉल जियो को लगेंगे लेकिन जियो के कॉल्स उनको नहीं लगेंगे, राइट? वो एक्सेप्ट नहीं होंगे. तो दे केम टुगेदर टू टैकल द जियो. बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सीसीआई ने ये बैन कर दिया और उनको पेनल्टी लगा दी कि ये गलत है. लैटर ऑन जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जब उनको पेनल्टी, सबको पेनल्टी लगाई, वो बहुत पुरानी पेनल्टी है, दैट इज इन क्रोर्स. So now to recover that penalty, everyone came together for their common. They fought the case together. सब right? जैसे बीजेपी के अगेंस्ट सब अपोजिशन साथ में आके लड़ रही है फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट. अब उनका कॉमन इंटरेस्ट उनका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है? सो सब साथ में आके लड़ रहे हैं अगेंस्ट मोदी या बीजेपी. सो राइट, दे आर फाइटिंग, भले दे आर इन अपोजिशन, एक दूसरे के भी अपोजिशन में, बट for their common interest or for their survival they are coming together and they are fighting. ये ऐसे यहाँ पे होता है. तो ये सब टेलीकॉम कंपनीज इंक्लूडिंग जियो, they came together and they fought a case in the Supreme Court कि ये पेनल्टी रॉन्ग है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पेनल्टी करेक्ट ही है. तो नाउ ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइसेस. तो ये कॉमन इंटरेस्ट के लिए साथ में आते हैं, ग्रुप बिहेवियर, कि हमारे सबका बेनिफिट है ना, तो साथ में आएंगे. ऐसे आगे, the firms may agree to pull together as a group in the promotion of their common interest. The group may or may not have the leader. Some groups have the leader, some groups may not have the leader. अगर वो ग्रुप में लीडर होता है उसको पार्शियल मोनोपोली ओलिगोपोली बोली जाती है. पार्शियल ओलिगोपोली मतलब जिसमें लीडर रहता है, एंड जिसमें लीडर नहीं रहता है उसको फुल ओलिगोपोली बोला जाता है. ठीक है, उस पे आने वाले हम लोग. सो ध्यान देना क्या लिखा है. Then आगे, they may have leader or may not have leader. If there is a leader, partial oligopoly. If there is no leader, full oligopoly. आगे, if there is a firm which acts as a leader, ठीक है, it has to get others to follow it. Others will follow the leader. These are some of the concerns, right, of the theory of the group behavior. Group behavior में problem क्या होता है, लीडर को पहले लोगों एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये लीडर है बोल के, एंड बाकी लोगों ने उसको फॉलो करना चाहिए, एंड दे शुड कम टुगेदर फॉर द कॉमन इंटरेस्ट. कभी कभी नहीं आते लोग साथ में, नॉट एवरीवन. लाइक आपकी सोसाइटी में भी, राइट, आप 10-12 लोग ही रहते हो, बट यू डोंट कम टुगेदर, यू आर नॉट कंसर्न. द सोसाइटी, सम पीपल आर फाइटिंग फॉर यू बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. ऐसे होता है. सो यही तो दिक्कत है कि यू आर लेस इन द नंबर, राइट, यू आर ए ग्रुप, स्टिल यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग. So ये concerns हो सकते हैं ग्रुप बिहेवियर के. आगे, but one thing is certain, each monopolist closely watches the business behavior of the other oligopolist in the industry and designs his moves on the basis of some assumptions of how they will behave, right, they behave or likely to behave. एक दूसरे को हेल्प करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, एक बार वो नहीं हो सकता, but they will keep close watch on others strategic entertainment. These are the 3 important features of the oligopoly. कौन से बोले? Strategic interdependence, advertising and selling cost, right? Generally price cutting नहीं करेंगे, right? Advertise ज़्यादा करेंगे, and group behavior. And group behavior, 3 things. This is 1, this is 2, this is 3. ठीक है? And now come to the types. ये बहुत simple है types. ध्यान देना. Types of the oligopoly. ठीक है, ये थ्योरी कंटेंट है. ठीक है, आगे, ठीक है. ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली. ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली में, ओके, आई हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द ओलिगोपोली. सबसे पहले प्योर ओलिगोपोली, राइट, लिख लेना. ये मैं एग्जांपल भी लिख के देता हूं, हाँ लिख लेना.
टाइप्स ऑफ द ओलिगोपोली। आज का ये लास्ट डिस्कशन रहेगा टाइप्स। दो एक और पार्ट बाकी, किंग डिमांड कर, कल हम डिस्कस करेंगे। कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड विथ सम माइनर पॉइंट दैट आई हैव टू गिव यू राइटिंग। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। फर्स्ट type is pure or perfect oligopoly, or pure or perfect or heterogeneous, differentiated, imperfect, differentiated, imperfect. It depends on the product. This is on the basis of the product they say. आई थिंक ये आईएससी में था क्या रे? कोई मुझे पिंक करेगा क्या? आईएससी सीबीएसई में ये टाइप्स थे क्या? शायद से हो सकता है। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे? एनीवन? सो on the basis of product, this is on the basis of the nature of the product, right? If you are selling, right, अच्छा एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए, on the basis of product पहले। अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट, ऐसे लिखना चाहिए, बराबर ना? होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हो, उसको प्योर या परफेक्ट बोला जाएगा। जनरली इनपुट्स लिख लेना बाद में, प्योर और परफेक्ट मोनो ओलिगोपोली। जनरली इनपुट्स, राइट, रॉ मटेरियल, एनी रॉ मटेरियल कैन बी एग्जांपल। एग्जांपल में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कितने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में? स्टील इंडस्ट्री में, कॉपर इंडस्ट्री में, हैंडफुल सेलर्स, but whatever they are producing is the same. Everyone is producing aluminum, copper, right? Your steel. So example, aluminum, copper, steel, cement. ये इनपुट जो बनाते हैं ना, इनपुट वाले बोल रहा हूं मैं। जे आर बोल रहे बांगर सीमेंट अलग है, अमूजा सीमेंट अलग है, दे आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम, ऑलमोस्ट सेम, होमोजेनियस। अगर आपको सीमेंट को इधर नहीं डालना है तो आप उस साइड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड में होमोजेनियस के बाद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, they are called as imperfect or differentiated oligopoly. इसमें I can give example of automobile. ऑटोमोबाइल, ठीक है, देन टेलीफोन, एयरलाइंस। देखो ना, एयरलाइंस की कंपनी में अगर कोई प्राइस कम करती है, एवरीवन हैज टू डिक्रीज द प्राइस, दे ट्राई टू कट ईच अदर, ठीक है। सो अगर आपका आउटपुट सेम है, ओलिगोपोली मार्केट है,
आउटपुट सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी ओलिगोपोली बोलते हैं? ठीक है, अच्छा नो फीचर्स वगैरह, ओके। सो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, इफ ओलिगोपोलीज आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट, उसको प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली बोला जाता है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली ऑन द बेसिस ऑफ, अब मैं थोड़ा उसको नीचे खींचूंगा, उतना एडजस्ट करना प्लीज। सेकंड, on the basis of entry, on the basis of entry is allowed, entry is not allowed, open and closed, free entry, anyone can enter in that oligopoly, and restricted, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री। मैं तीसरा इधर लिख सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ लीडर, ग्रुप बिहेवियर में जनरल लीडर होना चाहिए, होना चाहिए, है तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल ओलिगोपोली, अगर नहीं है तो उसको फुल ओलिगोपोली बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लीडर, प्राइस लीडर या जस्ट लीडर। पुणे में स्वीट इंडस्ट्री में आपको कितने सारे दुकान मिलेंगे, बट इट इज डोमिनेटेड बाय फ्यू हैंडफुल सेलर्स ओनली, उसमें चित्ते आते हैं, काका हलवाई आते हैं, और हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सो यू कैन से कि इट इज डोमिनेटेड, मैक्सिमम तो वही डोमिनेट कर रहा है आगे। सो इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज ओलिगोपोली एंड व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक, थोड़े कंफ्यूजिंग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लीडर, प्रेजेंस ऑफ लीडर, मतलब लीडर क्या करता है पता है आपको, ये लीडर सब डिसाइड करता है कि कितना आउटपुट करेंगे, राइट, प्राइस क्या रखेंगे, एंड एवरीवन विल फॉलो हिम, सो दैट इसमें किसी का भी नुकसान ना हो, राइट। ये आ गया आपका पार्शियल ओलिगोपोली, एवरीवन इज फॉलोइंग द लीडर एंड हु इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, खाली खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ही इज ऑल्सो अलाउइंग अदर्स टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। सो लिख लेना, क्या, पार्शियल ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली, राइट, एंड अगर देयर इज अब्सेंस ऑफ लीडर, absence of the leader, ठीक है, just एक सेकंड, हाँ, so absence of leader, absence of leader, if there is no leader तो इसमें ना हेवी कंपटीशन होती है, लीडर है तो वो तो मैनेज तो करेगा, कोई कंप्लेंट है किसी की तो आप उसके पास तो जाओगे, ही विल सॉर्ट इट आउट, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ लीडर, उसको बोला जाएगा फुल ओलिगोपोली, ठीक है। एंड द लास्ट टाइप मैं नीचे खींचता हूं, is last type is the way of working, how you reach to your client customers, the way of selling, ठीक है, वे ऑफ सेलिंग। अब यहां पे आ जाओ, फर्स्ट ये मैंने समझाया आपको, राइट, pure oligopoly or perfect oligopoly occurs when product is homogeneous in the nature,
right? Example, aluminum industry. This type of the oligopoly tends to process raw material and produce intermediate goods, which are used in the production of the fine other industries to produce the final output. Notable examples are petroleum, steel, aluminum, etc. Okay. Then, differentiated or imperfect oligopoly occurs when goods are sold, right, is based on product differentiation. Talcum पाउडर इज एन एग्जांपल, ये मॉड्यूल में लिखा है तो जनरली एग्जांपल में पूछते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज्ड. इफ द in the open oligopoly market, new firms can enter, otherwise they can enter exit. क्लोज इसमें एंट्री बैरियर होता है. कोलूसिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव. अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, अच्छा ये भी मेरा बाकी है, ठीक है. कहाँ पे एडजस्ट करें अब इसको, ठीक है, नीचे लिखता हूं मैं. on the basis of on the basis of right, on the basis of cooperativeness. If they cooperate or they don't cooperate. First, collusive, and second is competitive. They come together and they help each other. They decide their market share, they decide their price. जैसे ये लीडर करता है ना, लीडर पार्शियल ओलिगोपोली में लीडर कंट्रोल्स एवरीथिंग, अदर्स फॉलो लीडर. इसमें ऐसे किसी को फॉलो नहीं किया जाएगा. एवरीवन इज अ बिग फर्म्स एंड दे हैव डिसाइडेड देयर ओन, राइट, कि हम प्राइस सेम रखेंगे, ऑलमोस्ट थोड़ी फॉर प्राइस कम ज्यादा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, सो दैट नो वन विल सफर. OPEC is an best example. OPEC countries, organizations, right? उसका फुल फॉर्म, कोई लोग उसको ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी बोलते हैं, या उसका एक्चुअली फुल फॉर्म, राइट, आपको यहां पे मिलेगा. लेट मी चेक. OPEC is an best example. कहां पे तो रहेगा, ठीक है, लेट इट बी. OPEC कंट्रीज इज बेस्ट एग्जांपल. OPEC इज एन बेस्ट एग्जांपल. यहां पे देखो, हाँ, OPEC यहां पे उसका एग्जांपल, राइट. OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट. इसमें क्या होता है, ये लोग साथ में आके प्राइस डिसाइड करते हैं, ये लोग साथ में आके प्राइस डिसाइड करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली, राइट, दे कीप द प्राइसेस. आगे देन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, साथ में आएंगे, एवरीथिंग विल डिसाइड, दे विल नॉट कॉम्पीट अमंग ईच अदर, दे विल एक्चुअली उनका बिजनेस करेंगे विदाउट कटिंग द प्राइजेस, राइट. कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे जिससे सबका नुकसान होगा. कोलिजिव, otherwise there will be cutthroat competition. When few firms of the oligopoly come to common understanding or act in collusion with each other, either in the fixing the prices or the output or both, it is a collusive. Otherwise, where there is absence of such agreement or understanding among the firm, they compete with each other, is called as competing oligopoly. Okay? And partial oligopoly, presence of leader. Partial oligopoly is a partial where industry is dominated by one large firm. एक बड़ी firm रहेगी and that will be leader, right? One large firm which is considered or looked upon as a group of the leader. The dominating firm will be the price leader. In the full oligopoly, the market will be conspicuous by the absence of price leadership. Market is very clear, there is no any leader. ठीक है, ऐसे इसको फुल ओलिगोपोली बोला जाएगा. सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं दो. एक दूध डेयरी एंड दूसरा एग्जांपल है मंडई. पुणे में जो मंडई है, मार्केट यार्ड, ध्यान देना दोनों का डिफरेंस क्या है. कात्रज दूध डेयरी, बारामती दूध संघ,
उसमें होता क्या है ध्यान देना। ध्यान देना, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, एक बारामती दूध संघ, दूसरा है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र, बारामती दूध संघ, डेफिनेटली, ठीक है। एंड दूसरा है आपका ये मार्केट यार्ड जो गए हैं उन, राइट। बारामती दूध संघ में होता क्या है कि हर गांव में छोटे छोटे डेयरीज है, सब फार्मर्स दे कैन नॉट डायरेक्टली कम एंड सेल टू द बायर। पुणे में दूध सप्लाई करना है, पूरे महाराष्ट्र में दूध सप्लाई करना है, तो यू कैन नॉट सेल। एक एक फार्मर कहाँ कहाँ पे जाके दूध देगा, तो वो क्या करता है, दूध डेयरी में जाके दूध देता है। ये छोटे हर गांव में सपोज 2-3 दूध डेयरी, दे कलेक्ट फ्रॉम ऑल द फार्मर्स फ्रॉम दैट विलेज। फिर वो एक थोड़ी एक उनके तहसील लेवल पे एक बड़ी दूध डेयरी रहेगी, वहां पे देंगे। फिर वो बारामती दूध संघ को लाके देंगे, एंड बारामती दूध संघ विल प्रोसेस इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड विल डायरेक्टली मेक इट अवेलेबल टू द राइट कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे इतने सारे जो सेलर्स है, कितने सेलर्स है, बट दे आर वेरी स्मॉल सेलर्स, इंडिविजुअली दे कैन नॉट चार्ज हायर प्राइस, इवन दे कैन नॉट रीच टू द क्लाइंट्स, कस्टमर्स। तो एक लोग साथ में आके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जो उनके लिए सेल करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जो उनके लिए सेल करेगी। दे आर नॉट सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर, कस्टमर और सेलर्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके लिए सेल कर रही है। दिस इज वन टाइप ऑफ डूइंग बिजनेस। small sellers comes together, they form the organization, they sell the product to the organization and organization sells for them, या वो उनको सेल करने की जगह ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सेल करेगा, वो उनको रिटर्न करेंगे। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग बिजनेस। समझा इसमें क्या हो रहा है, सेलर्स एंड बायर्स के बीच में कौन है, ऑर्गेनाइजेशन है। सेलर को पता नहीं बायर कौन है, बायर को पता नहीं सेलर कौन है, बीच में ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअल कौन है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। दूसरा है, इसमें सब साथ में आ रहे हैं ना, कोलूजन हो रहा है। दूसरा होता है मार्केट यार्ड। मतलब क्या, मार्केट यार्ड में है क्या, ध्यान देना, मार्केट यार्ड में देयर आर वेरियस सेलर्स। तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा कर दिया है सब सेलर्स के लिए, सब सेलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे और खुद सेल करो, वहां पे आके सेल करना है। मतलब यू नो हु इज योर सेलर, कस्टमर को पता है बायर कौन है, बायर को पता है कस्टमर कौन है, वहां पे आपको इंडिविजुअली सेल करना है, आपके लिए कोई सेल करने के लिए नहीं है, सेलर्स के लिए कोई सेल करने के लिए एसोसिएशन है, वो एक टाइप हो गया। दूसरा हो गया, आप सब सेलर्स में साथ में आके एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जहां पे आके आप सेल करोगे। Amazon, actually Amazon is making the platform available to the sellers so that they can sell. Sweezy, वहां पे आके एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सब रेस्टोरेंट्स कैन कम एंड सेल टू द कस्टमर्स। हमें पता होता है हम किस रेस्टोरेंट से परचेस कर रहे हैं, Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्विगी हुआ या मार्केट यार्ड, हमें पता है हम किससे परचेस कर रहे हैं, बट उनकी एक एसोसिएशन है, जिन्होंने जो एसोसिएशन उनके लिए सेल नहीं कर रही है, दे आर मेकिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल जिसके थ्रू वो सेल कर सकते हैं। ऐसे दो आ गए। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, syndicated oligopoly refers to that situation where firm sells their product through a centralized syndicate। एक सेंट्रलाइज सिंडिकेट, एक एसोसिएशन है, सिंडिकेट, सेलर उनके थ्रू सेल करते हैं, डेयरी। दूसरा, organized oligopoly refers to the situation where firms organize themselves into a central association for fixing prices, output and quotas। तो मार्केट यार्ड में जाओगे, आप कोई भी दुकान में जाओ, आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस रहेगी, सब ऑलमोस्ट सेम आउटपुट सेल करेंगे, कोटा सबका सबका डिसाइड होगा, टाइमिंग सबका डिसाइड होगा। तो एक सेंट्रल एसोसिएशन है, उसके थ्रू वो प्राइसेस, कोटास, आउटपुट वगैरह डिसाइड करते हैं, बट खुद सेल करते हैं। सो सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड लिख लेना, सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड, सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड। सेलिंग थ्रू राइट सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन या सेलिंग थ्रू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन।
Example, Katr's Milk Dairy. Then ये डेयरी की स्पेलिंग क्या है? DI है शायद से, I don't know, right? उतना समझ लेना. Then organized में आएगा selling on their own, however, right, under central organization. Example, market ad. खुद सेल करो बट एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सेल करो, राइट? तो मार्केट में कहां पे जाओ आपको प्राइस सेम मिलेगी, ठीक है? So these are the types. ठीक है? So these are the types, as simple as that. So आज हमने क्या किया, हमने पहले का वो डिफरेंसेस रिवाइज किया. दूसरा हमने किया कि we started with the oligopoly. First we understood the difference between the different types of market: monopoly, monopolistic, oligopoly, monopoly, oligopoly, monopolistic and perfect competition. फिर हमने देखा कि what do you mean by oligopoly? Few large sellers, मार्केट में कम ही सेलर्स है बट लार्ज है. या दूसरा दूध जैसे large number of sellers but dominated by very few. Sweet industry, automobile industry, right? Then ऐसे दो टाइप्स के केसेस हो सकते हैं. फिर हमने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स: strategic interdependence, you are dependent on others for their strategies, right? दूसरा होता है कि you have to incur selling cost and group behavior. Selling cost and the group behavior, बराबर ना? 3 चीजें थी. उसके बाद टाइप्स देखे. टाइप्स में फर्स्ट देखा हमने, राइट, प्योर वर्सेस प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली वर्सेस इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड. प्योर ओलिगोपोली में यू आर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट, जनरली इनपुट्स which are used for manufacturing the right final output. They are examples of pure or imperfect oligopoly. If you are selling differentiated products, it is differentiated or imperfect oligopoly. Open or closed oligopoly is very simple. If entry and exit are free, open, otherwise it is closed, right? Collusive versus competitive oligopoly, when few sellers comes together, right, and they cooperate each other on the price front, on the output front, right? They are working for their common interest. It is a collusive oligopoly. Otherwise, if they are not coming together, they are competing literally with each other. It is which oligopoly? It is competitive oligopoly. Partial versus full oligopoly. Partial oligopoly is oligopoly where there is a presence of the price leader and others follow him. Full oligopoly में there is clear cut no price leader. Then syndicated or organized oligopoly. Syndicated oligopoly is selling through a central organization. You are not directly selling the customers, you are selling through central organization. तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हम सेल करेंगे, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सेल करेंगे. लाइक मैंने बोला दूध डेयरीज इज अ बेस्ट एग्जांपल. एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में, राइट, लाइक अमेज़न वगैरह या मार्केट यार्ड, you are selling to customers but under the central organization. Means
You cannot charge your own price. You cannot decide your own output. You have to follow the central organization's guidelines. So that is, but they are like collusive in the nature. They come together for their common interest. समझ में आ रहा है? So these are the types of the oligopolies. कल हमारा खत्म हो जाएगा. कल खाली प्राइस लीडरशिप एंड किंग डिमांड कर्व. प्राइस लीडरशिप हमने अभी डिस्कस भी किया है, राइट? बहुत सारी उसमें से पॉइंट कल मैं रिवाइज करूंगा एंड किंग डिमांड कर्व होके अपना खत्म हो जाएगा. ठीक है? किसी के डाउट है इसके रिलेटेड? Generally whenever we write the answer, few sellers जब भी लिखा जाएगा ना, they won't specifically say 10 sellers. क्वेश्चन में few sellers रहेगा तो उसका आंसर ओलिगोपोली आग बंद करके लिख दो. ठीक है? ओलिगोपोली can sell homogeneous or differentiated. Monopolistic always sells differentiated. तो वहां पे हम few sellers नहीं बोलते, वहां पे बोलते हैं large sellers, and very large sellers perfect competition. Very large sellers selling homogeneous, perfect. Large sellers selling differentiated, you are monopolistic. Few sellers selling homogeneous or differentiated, oligopoly. ठीक है? ऐसे. And single seller selling highly differentiated, obviously it has to be monopoly. ठीक है? So solve the problems. You have to use the read the words very carefully. ठीक है? So मुझे लगा था आज हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कल हो जाएगा. दूसरी बात, आज इवनिंग 5 o'clock NPO. We are starting with the problems. Thank you.